Good morning, ma'am. Morning, Srishti. Good morning, ma'am. Good morning, Bhumika. Bhumika, your sister is in 8th? No, ma'am, in 7th. She's in 7th. Nishika Chandani, right? Yes, ma'am. Okay. I thought she's in 8th. चलो क्लासेस करती हैं वो नहीं? Yes, ma'am, वो रोज करती है. चलो गुड. Like भूमिका दीदी, हाँ? Yes, ma'am. Good. Okay. Tell me, where did we stop the class the other day? I think yesterday only we had a class, no? We were Yes, on. ma'am. We were on. I actually, because of network connection, I left the meeting at last. So Navjot will tell. Navjot, where were we yesterday? Huh? Yes, ma'am. Where were we yesterday? Which class? Which topic we were doing? Ma'am, sectors 3 sectors. Okay, sectors of economy, right? Ma'am, tertiary sector complete हो गया था. Okay. चलिए. I hope you all have the books with you. Yes, ma'am. Right. Can Navjot tell how much we have done? Yes, ma'am. How much? Which part exactly of the economy sectors of economy we were doing? Can you tell, beta? हाँ? Ma'am, tertiary sector हो गया था मैम complete. Good morning, ma'am. Good morning, Ajit. I'm sharing. I'm sharing the screen with you people, right? Can you tell me exactly which topic we left on? Ma'am, yesterday we were learning sectors. सेक्टर्स के बाद हमने सेक्टर्स अभी खत्म नहीं हुए थे हमारे. Ma'am, done. Sectors were done, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think we were on the classification of industries, I believe, right? Ma'am, you were asking questions. I was asking you questions Yes, ma'am. regarding these sectors, right? Ma'am, we are doing MCQs. Yes, ma'am. MCQ side. MCQs कौन से? Manufacturing industries के? Yes, ma'am. Don't tell me. ये चैप्टर हमने खत्म भी नहीं करा है. MCQ कैसे पूछ सकती हूँ मैं आपसे? No, ma'am, वो civics में था मैम.
एमसीक्यू तो हमारी कंप्लीट वो सिविक्स की क्लास तो हमारी जो है वेंसडे को थी, तब हमने करा था. Yes, ma'am. Were you not there, Akshat and Arvind, yesterday? Ma'am, I am मैं there. अपने सेक्टर पढ़ाने के बाद कर रहा था कल. मतलब क्या करा था, आप हमें बताओ. Ma'am, वो question ऐसे ही MCQ पूछे थे, ma'am. अच्छा हमने ओके ओके जनरल क्वेश्चंस पूछे थे, राइट? Yes, हाँ. ma'am. चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एंड we'll do more of the explanation. ठीक है? क्या हमारे MCQs पूरे हो गए थे? है बेटा? And which chapter? Ma'am, civics. हाँ Yes, ma'am. हो गए थे ना. चलिए तो स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं आपके साथ. Ma'am, जी बच्चा. ma'am, that term one exam, ma'am, you can make chapter wise PDF MCQs and ma'am, you can share in group, ma'am. We will do it in the classes. Sharing part will be done little late, but every day in the class we will be doing extract based questions. We will do all MCQs, Yes, but chapter wise and topic wise, right? That Yes, way ma'am. it will help you out in learning paragraph wise what you have, right? हमने कल कहाँ करा था, क्या करा था? Where has that thing gone? Can you tell me where we were? And we were doing a sector. ना ना, इसमें स्क्रीन में से कौन सा वाला वो हम कर रहे थे? Ma'am, इसमें नहीं है वो. मिल गया मिल गया. यही तो कर रहे थे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज Yes, दे ma'am. गो हैंड इन हैंड. ये Yes, वाला ma'am. तो हम कर रहे थे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड 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 गुड. अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं, हम लोग कल लोकेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, आई थिंक ये कर रहे थे हम लोग बेटा, है ना? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी करा था हमने No, ma'am. बेटा. बताइए बच्चा, No, एग्लोमरेशन ma'am. इकोनॉमीज हमने No, बताया ma'am. तो, हमने एग्लोमरेशन इकोनॉमी नहीं समझाया था आपको कि if an industry is set up and along with the industry several other things come up which form the agglomeration economy, जैसे ईटिंग जॉइंट्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए आपके. जैसे इनिशियली क्या होता है जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, इंडस्ट्री सेटअप हो गई उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है ये छोटे छोटे खोखे आते हैं. कोई चाय का खोखा आता है, कोई ढाबे आ जाते हैं भाई, खाने के आ जाते हैं. फिर जैसे जैसे लेबर्स अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो भाई जब फैमिली आती है तो डेली नीड्स की दुकानें खुल जाती हैं. फिर आपका जो है छोटे छोटे जो है क्लिनिक्स निकल के आते हैं. फिर वो क्लिनिक जैसे जैसे वो जगह एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है, वैसे वैसे वो क्लिनिक्स जो है हॉस्पिटल्स में तब्दील होते जाते हैं. ऐसा कुछ हमने बताया था, नहीं बताया था? याद है कि नहीं? हाँ मैम इस क्लास में नहीं होता है. मैम ये नहीं बताया था आपने. मैम ये नहीं मैम बताया. आपने No, मॉल ma'am. का एग्जांपल दिया. मॉल का एग्जाम्पल दिया था ना हमने, कि वो हमने इसलिए दिया कि भाई मॉल का एग्जाम्पल आप लोग को सबको पता है मॉल कहाँ पे, प्लस मॉल के मॉल की जो जगह है जहाँ पे मॉल पहले, जहाँ पे भी मॉल है उस जगह पे पहले इट वाज अ बेयर लैंड, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं था. सड़क के दोनों साइड्स पे ऑन द रोड्स वी हैड ह्यूज यूकेलिप्टस ट्रीज. और धीरे धीरे ये जो यूकेलिप्टस ट्रीज हैं इनको काटा गया. ठीक है, उसके बाद जो है इनको, बेटा एक निहारिका को ले ले मीटिंग में बच्चे.
हम सोच रहे हैं मीटिंग को लॉक करने का प्रोविजन लगा दें, नहीं तो पूरा टाइम ही बच्चे अंदर ही लेते रहते हैं क्लास के अंदर। चलो, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं? जब कोई एक इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसके साथ साथ कई छोटी छोटी चीजें भी निकल के आती हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया आपको, चाय के खोखे, पान बीड़ी की दुकानें आती है नहीं आती है, ये सब लेबर क्लास जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है इनको, Yes, है ma'am. ना? तो इन सब की शॉप्स होती है। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्लेस ग्रो करती है बेटा, इन एवरीथिंग इकोनॉमिकली, जब वो प्लेस ग्रो करती है तो ये जो छोटे छोटे खोखे होते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय गुड ईटिंग जॉइंट्स या गुड रेस्टोरेंट्स, या फिर प्लेसेस वेयर like daily need goods are available, plus keeping in mind the main attraction of the area। अगर जैसे मॉल के आसपास अगर आप देखो तो क्या क्या है, मॉल के आसपास पार्किंग है, उसके बाद जो है आपका एक हॉस्पिटल भी है कोई, फिर छोटी छोटी नर्सरीज हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई जो मॉल आएगा वो मतलब जो प्लांट्स रखने के शौकीन होंगे, तो हो सकता है वो एक बार को हमारी नर्सरी पे आके झांक जाए कि भाई कौन सा कोई अच्छा यूनिक पौधा तो नहीं है। प्लस दे कीप सर्टेन अदर गुड्स आल्सो विद देम, सो दैट कि प्लांट्स के साथ साथ बाकी चीजों की भी सेलिंग जो है उनकी वो होते रहे। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, अब हम आ जाते हैं अब हम आते हैं कि व्हाई इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसका क्या रोल है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, बेटा एक दिन जैनब आई है क्लास में, उनको ले लें। चलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ what do you think why industries or manufacturing is important? Can you tell any of the reasons, beta? Ma'am, please repeat. मैं पूछ रही हूँ what is the importance of manufacturing? Ma'am, we Ma'am, can build the things in the large scale. Now beta, what is the importance of manufacturing? Yesterday we discussed a lot many points about it, no? Ma'am, we can make the things on large scale. Huh? Ma'am, it provides jobs in secondary and tertiary sectors. It provides jobs, or it gives meaning to the primary and the tertiary sectors. चलो ठीक है, और बताओ। Ma'am, it helps in removing unemployment. Very good. It helps in removing unemployment. It also helps in eradicating poverty. गरीबी खत्म करने में हेल्प करती है ये। Yes. मैम reduce Ma'am, the it heavy economic growth, ma'am. हाँ जी, Ma'am, economic growth. हाँ चलो ठीक है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं आपका, इट रिड्यूसेस
dependence on agriculture. देखो आपने ये देखा होगा कि जिन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं वहां पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत कम होता है. अगर हम बात करें अपने देश की, जब हमारे कंट्री में इनिशियली इंडस्ट्रीज का परसेंटेज बहुत कम था, हालांकि आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इफ वी कंपेयर इट विद द अर्ली टाइम्स, it is comparatively better than what it was in 1960s. Like if we compare 1960 with 2021, we will find that there has been lot of improvement in the conditions of the industries. Many new industries and factories have come up where people have shifted their working places from the primary sector to the secondary sector. I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नो डाउट्स भाई, देखो इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल तो रिक्वायर्ड होता ही है, बट क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं तो देश, हम ये कह सकते हैं कि लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, जो कि कौन सी वाली वो होती है, वो दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना. एक होती है आपकी Disguised unemployment. एक सीजनल होती है और एक डिस्गाइज होती है. ठीक है, तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो एग्रीकल्चर से हट जाती है जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है. आई होप आई एम अंडरस्टूड. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग जब हमारे पास जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो जाता है. ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है, ठीक है, Yes, ma'am. गेट्स इरेडिकेटेड. मतलब जो क्या बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेरोजगारी. ये जो बेरोजगारी और जो गरीबी है, इसको खत्म करने में, एलिमिनेट करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I need to explain how these two, how it is done through the manufacturing industries. जब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज्यादा वर्किंग क्लास चाहिए होगी, लेबर क्लास चाहिए होगी. जब लोगों के पास जॉब्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो अपने आप पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, राइट? Yes, ma'am. चलिए, Yes, कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं, reduces regional disparity in terms of development. ठीक है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रीजनल डिस्पैरिटी जो होती है ना, रीजनल मतलब क्या हुआ, रीजनल का मतलब क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब बेटा, Every region. हाँ, Every region of manufacturing. what did you say बेटा? Ma'am, the area where manufacturing is done. बेटा रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम, डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट्स, डिफरेंस इन द हेल्थ एंड द एजुकेशन सर्विसेज, लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर हम कंपेयर करते हैं बिहार को और बैंगलोर को, तो क्या बिहार और बैंगलोर में कोई रीजनल डिस्पैरिटी है कि नहीं है? मैम है. कैसे है, कैसे है, समझाओ हमको.
इलिटरेसी In है, very good. capita Ma'am, income. there देखो अगर हम in Bangalore and ma'am, जी बेटा देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, आपका लिटरेसी, ठीक है, आपका हेल्थ, एजुकेशन, फिर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब में जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर हम कंपेयर करते हैं बिहार और बैंगलोर को, तो आप ये पाओगे कि बेंगलुरु जो है, ठीक है, Education is well in बेंगलुरु, Bengaluru. हाँ बेंगलुरु जो है वो एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, इन सब में बिहार से आगे Better है, बेटर है, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बहुत हद तक इन रीजनल डिस्पैरिटीज को भी कम करती है। आई होप आई एम क्लियर एंड अंडरस्टूड, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. फाइन। अब इसका जो लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड्स, व्यापार और क्या बोलते हैं इसको, उद्योग, व्यापार और उद्योग में जो है आपकी बढ़ोतरी होती है, वो एक्सपैंड करता है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना ही ज्यादा फिनिश्ड गुड मिलेगा, और उतना ही ज्यादा हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। उस हमारे कंट्री में, कंट्री के फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी होएगी, बेटर होएगी, और हम इस कैपेसिटी में होंगे कि हम ट्रेड कर सके। राइट राइट क्लास? Yes, ma'am. चलिए ma'am, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे कंट्री की जो प्रोस्पेरिटी है, संपन्नता को ये बढ़ाती है, ठीक है, इंक्रीजेस प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया सबको? yes, Yes, ma'am. अच्छा, कल हमने एक चीज और करी थी, फैक्टर्स कंट्रोलिंग factors contributing to the location of industries. इसमें हमने दो तरीके के फैक्टर्स करे थे। इफ यू कुड टेल दिस टू मी क्लास, वो फैक्टर्स हमने कौन से पढ़े थे कल? पढ़े भी थे कि नहीं है बेटा? बेटा हमने कल बताया था फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, करा था कि नहीं? Yes, ma'am. No, है ना? ma'am. ये जो Ma'am, फिजिकल, जब हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो फिजिकल फैक्टर्स में हमने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा आपका पावर रिसोर्सेस, इसमें हम बेसिकली उन रिसोर्सेज की बात करें जो एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि वाटर एंड क्लाइमेट, ये फिजिकल फैक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फैक्टर्स, आपका लेबर, मजदूर जिसको Labor, बोलते हैं, capital, ठीक है, कैपिटल,
Very good. What else? Transport, Land. right? Then market. Power. Market. मार्केट, पावर तो हो गया बेटा. मार्केट और आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज. कई बार क्या होता है, ये जो फिजिकल फैक्टर्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है, ठीक है, पर ह्यूमन फैक्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ह्यूमन फैक्टर भी जो है बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब कई बार क्या होता है, वो एरियाज जहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल होती है वहां पे इंडस्ट्रीज खोली जाती हैं, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. और ट्रांसपोर्ट जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पे मार्केट नियर बाय हो, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो, where if a person has to purchase a land for setting up an industry, government promotes it. जैसे अगर हम बात करते हैं रुद्रपुर की, आपको पता है रुद्रपुर क्या है? जानवर का नाम है, इंसान का नाम है, पक्षी का नाम है, किसका नाम है? मैम जगह का नाम है. Name of मैम a एक place. प्लेस का नाम है. हाँ जी. Place. Where is Rudrapur? Do you know which state? उत्तराखंड. उत्तराखंड. Do you know anything about that place? UK. रुद्रपुर क्यों इतना फेमस है, क्या ऐसी खासियत है उस जगह की, आपको पता है? सिडकुल. सिडकुल, ओके. तो इसको अगर हम ऐसे कहें कि रुद्रपुर इज कंसिडर्ड टू बी द इंडस्ट्रियल यूनिट, राइट? आप Yes, देखो ma'am. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रुद्रपुर में लोकेटेड है, पर ऐसा इनिशियली Yes, नहीं था. ma'am. पहले रुद्रपुर में लोग इन्वेस्ट नहीं करना मांगते थे, ठीक है, पर जब गवर्नमेंट को लगा कि रुद्रपुर एक ऐसी जगह है जहां पे इंडस्ट्रीज को इंक्रीज किया जाता है या इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी कुछ पॉलिसीज बनाई जहां पे जो लोग उस जगह पे उस प्लेस पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे, वहां पे उन्होंने उनको कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड कराए, जिसमें कि लैंड उनको थोड़ा सस्ता मिला, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट पार्ट था उसमें कुछ प्रोविजंस दिए, जिसमें कि इजी इन्वेस्टमेंट लोगों के, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट इजी हो जाए. तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज डिसाइड करती है ड्यूरिंग द प्लान 5-year plans for the industries, especially for the large scale industries, उन प्रोविजंस में बहुत सारी चीजें आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस से भी कंसर्न रखती हैं. बैंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक यस्टरडे आई टोल्ड यू, बिकॉज बैंक्स दे गिव द लोन्स, राइट? तो यस मैम. अगर मुझे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मेरे पास इतना पैसा तो होगा नहीं करोड़ों जो कि मैं खुद से सेटअप कर सकूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी. गवर्नमेंट मुझे कैसे हेल्प करेगी? जो भी इंडस्ट्री में सेटअप कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट को बताऊंगी कि मैं इस तरीके की इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे आप लोन प्रोवाइड कराइए, और जो कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आप मत लीजिएगा, क्योंकि मैं देखूंगी चल पाई नहीं चल पाई. तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिसको कि सरकार भी कंसिडर करती है और बैंक्स भी कंसिडर करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है लोन्स प्रोवाइड कराते हैं. जब लोन्स मिलते हैं तभी इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है. उसके बाद मैं एक इंडस्ट्री सेटअप कर रही हूँ, पर मैंने ये चीज नोट ही नहीं करी, ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि क्या उस जगह से, उस पर्टिकुलर एरिया से मेरा मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर रिसोर्सेज, वाटर अवेलेबिलिटी, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कितनी फेवरेबल है मेरी वो इंडस्ट्री सेटअप करने में, राइट? मुझे इन सारे फैक्टर्स को, और ये भी देखना होगा, अगर मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करती हूँ तो क्या मेरे पास इजी लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, क्या मेरे पास एक पानी का कोई मुख्य स्रोत है कि नहीं है, क्या मेरे पास पावर रिसोर्सेज पूरे हैं कि नहीं है, क्या मुझे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो पाएगा, और जब मेरा फिनिश्ड गुड मैंने बना दिया तो क्या उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट नियर बाय मिल जाएंगे. ये सारे फैक्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप एक समझदार एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे फैक्टर्स जो जितने हमने यहाँ लिखे हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सेट अप एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री और फैक्ट्री. मानो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करी, ठीक है,
और हमने ऐसी जगह पे Yes, सेटअप करी, ma'am. हमने ऐसी जगह पे सेटअप करी जहां पे आना जाना इज अ बिग टास्क। तो क्या मेरा फिनिश्ड गुड इजीली जो है मार्केट पहुंच पाएगा? अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, No, ma'am. अगर मेरी No, ma'am. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ही कम हो, पर मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट का खर्चा इतना बढ़ जाएगा, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का, क्योंकि मैंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई है वो शहरों से, वो आबादी से इतना दूर है कि वहां ले जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मार्केट इजी नहीं होगा, तो मेरा सारा पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन पे। मैं पर क्या Yes, चाहती ma'am. हूँ कि जो मेरी इंडस्ट्री में सेटअप कर रही है उससे मुझे मुनाफा मिले, मुझे प्रॉफिट मिले। तो क्या ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करके मुझे बेनिफिट मिल पाएगा? No, ma'am. नॉट No, एट ma'am. No, ma'am. नॉट एट ऑल। तो इसीलिए जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ही बहुत सोच समझ के बेटा अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा वापस जल्दी से नहीं आ पाएगा। और दूसरा, जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो उन्होंने लोन लिया है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। Yes, ma'am. चलिए, नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपकी समझ से इंडस्ट्रीज कितने तरीके की होती होंगी? क्या एक ही तरीके की इंडस्ट्री होती है या मल्टीपल तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं? Multiple. मल्टीपल होती है ना। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की जो कि रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती है, जैसे बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। अगर हम बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज जो है वो 2 तरीके की होती हैं। पहला आपका होता है, Agro. हाँ Ma'am, agro based and mineral based. ना, वो तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो गया ना। अगर हम रॉ मटेरियल पे बेस करते हैं तो हमारी होती है हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील को बोलते हैं, जिसमें कि मशीनरीज, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनते हैं एंड विच आर फर्दर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो आपके हो गए हैवी इंडस्ट्रीज। और लाइट इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल, चाहे आपकी वायर्स हो गई, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए जो लाइट होते हैं। ठीक है, तो ये लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। हैवी इंडस्ट्री में आपके आयरन और स्टील आता है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब हम आते हैं दूसरे टाइप की इंडस्ट्री पे, वो है हमारी लेबर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड। ठीक है, लेबर स्लैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट? आप हमें बता सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? क्लास, Large scale industries have a large area. दे हैव लार्ज Area of land. ओके, और क्या होता है? मैम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। यस, वेरी गुड। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं
इनमें जब इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। और जो स्मॉल स्केल है उसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कम है। अब वो कम क्राइटेरिया क्या है जानते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किन जगहों पे ज्यादा होती है? जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में, in all those developed countries, most of the developed countries, they have maximum concentration of large scale industries with them. And all the developing countries that we have, like India, we have more concentration of small scale industries in comparison to large scale industries. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या होता है? ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, सॉरी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका 1 करोड़ का होता है। तो अब आप समझ लो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होता होगा। ये पहले तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पहले ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था ये कम था, बट 1999 के बाद जब गवर्नमेंट ने अपने उसको रिवाइज करा, तो उस स्केल को जब रिवाइज करा फॉर द इन्वेस्टमेंट वाला थी, तो उसको 1 करोड़ डिसाइड कर दिया। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू दी लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ही लेबर एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी ज्यादा होती है, उतने ही ज्यादा लोग जो है वो काम कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इसका अपोजिट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है और ज्यादातर काम मशीन्स करती हैं और थोड़ा बहुत काम जो है हायर्ड लेबर से करवाया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अगर हम थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है, बेस्ड ऑन ओनरशिप का मतलब क्या होता है? कौन उन इंडस्ट्रीज को ओन करता है या किसके अधीन होती है ये इंडस्ट्रीज। जब हम इसकी बात करते हैं, वी कैटेगराइज देम इनटू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इतना क्लियर हुआ क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जो पब्लिक सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट ओन्ड होता है, सरकार के द्वारा संचालित, गवर्नमेंट ओन्ड। प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये आपका इंडिविजुअल ओन्ड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टाटा, बिरला और अंबानी की, तो ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो ये है कौन सा हुआ, भेल हुआ, सेल हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आपके गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। जब हम जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं तो जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? जॉइंट सेक्टर्स में दोनों आपका जो ये पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है। अगर हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करते अगर हम गुजरात एल्कलाइंस की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक जॉइंट सेक्टर का वेंचर है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। और जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री